السلام علیکم جی، میں ہوں بینر سلیم۔ ملکی سیاست ایک بار پھر دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے۔ ماضی گواہ ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہے، مگر اس بار اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا ماننا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ نیوٹرل سیاسی موسم ہوتے ہی وہ مطلوب نمبرز پورے کر چکے ہیں، اور اسی یقین کامل کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے اپوزیشن نے 86 ارکان کے دستخط کے ساتھ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ انہیں 190 سے زائد ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ اپنے آپ میں ایک حیران کن دعویٰ ہے یہ۔ تحریک عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ جاننے کے لیے ہی آج کی ہم نے نشست رکھی ہے، اور آج کے سیدھی بات زون میں جو مہمان ہمیں جوائن کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مجھے یاور بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے شیلا رضا صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، السلام علیکم، خوش آمدید، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ پی ایم ایل این سے مجھے رانا مقبول صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینیٹر ہیں، السلام علیکم، خوش آمدید۔ تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی، اور آغاز میں آج کی ڈسکشن کا وہاں سے کروں گی جہاں سے اپوزیشن نے چھوڑا۔ ابھی آپ نے مونٹاج میں بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھئی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ لیٹ اٹ بی آصف علی زرداری، لیٹ اٹ بی شہباز شریف، لیٹ اٹ بی مولانا فضل الرحمان، سب کے سب ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج ہے عمران خان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ یاور بخاری صاحب، فرسٹ کوسچن فرسٹ، یا تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے کتنے دن رہ گئے ہیں حکومت میں، یا پھر آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے۔ اب تو آپ اسمبلیاں بھی نہیں توڑ سکتے، پھنس گئے عمران خان صاحب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ بفضل خدا ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اور یہ جو کریں، اور بہت اچھا کہ ان لوگوں نے بھی یہ تحریک پیش کر دی، کیونکہ ابھی ان کو حقیقت بھی کھل جائے گی نا۔ وہ ایک کھوکھلے دعوے، شور مچانا، یہ کرنا وہ کرنا، ہمارے پاس یہ دیکھیں، جو بھی گورننگ پارٹی ہوتی ہے نا، اور اگر اس کے اوپر جیسے کہ ماضی کی حکومت میں ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بن کے ہر کسی کو، وزیروں کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہوتی تھی، وہ سیکٹریز چلاتے تھے، تو وہ اس کا ایک دھونس تھا، تو کوئی بولتے نہیں تھے، بولتے تھے تو وہ بھائی پارٹی سے نکال دو، تو میں اگلا ٹکٹ نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ رویہ تھا شہباز شریف صاحب کا۔ اور ہمارے پاس وہ رویہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو آزادی سے اپنی جو ان کی رائے ہے وہ استعمال کریں، اور اس کے اندر یہی ہوا۔ اور دیکھیں آج بھی یہ جتنی باتیں کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے الٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 190 ہے، میں آپ آج کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی 190 نہیں ہے۔ ان کو سرپرائز ملے گا، اور میں بھی آپ کو نمبرز نہیں دوں گا، میں آپ کو سرپرائز دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ جس دن یہ ووٹنگ ہوگی ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ان کو چھوڑ کے گئے، کیسے ہوا، ممکن ہوا، ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی ایک پریڈکشن تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ سارے چوروں کا ٹولہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے میرے خلاف، وہ اس لیے کہ ان کو این آر او چاہیے۔ یہ ابھی این آر او کے لیے مر رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ ابھی حکومت میں، مثال کے طور پہ اگر کل ان کی حکومت کبھی آتی ہے، یہ این آر او کو کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دلوائیں گے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا، دے نہیں سکتے۔ ان کے خلاف چیزیں موجود ہیں، یہ صرف فرق یہ پڑ رہا ہے کہ عدلیہ ٹائم لے رہی ہے، وہ چیزیں اپنے اس سپیڈ پہ نہیں چل رہی ہیں جیسے پی ٹی آئی چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہاں تک ٹھیک ہے یاور بھائی، لیکن دیر از ادر سائڈ آف دا اسٹوری۔ مطلب پنجاب میں علیم خان گروپ ہو، جہانگیر خان ترین گروپ ہو، یہاں پر انہوں نے اپوزیشن نے وفاق پر حملہ کیا، وہاں پر پنجاب پر حملہ ہوا، کیا وہ بھی چوروں کا ٹولہ تھا؟ انہوں نے کہا عثمان بزدار کو ہٹانے سے پہلے ہم بیٹھ کر کے مشاورت تک نہیں کریں گے، ملیں گے تک نہیں، میٹنگز تک نہیں ہوں گی، تو کیا یہ بھی چوروں کا ٹولہ تھا جو آپ کے اگینسٹ ہے؟ کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ شہباز شریف تو ایک ایم پی اے ہمارا جنٹ سے گیا تو اس نے بولا کہ جی سال بعد ٹائم ملا ہے، اس نے کہا جاؤ ریزائن کر دو۔ مطلب اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، ایم پی ایز کی عزت ہی نہیں تھی، وقت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہ 4-5 مین ایم پی ایز جو ہوتے تھے یہی آس پاس ہوتے، باقیوں کو تو وقت ہی کوئی نہیں تھی نا۔ یہاں پہ ہمیں ہر کسی کو وقت ملتی ہے، کسی کو ٹائم نہیں ملا، دیر سے ملا، میں نے ٹائم مانگا ہوا، مجھے ابھی دیر سے ٹائم ملا، لیکن ٹائم مل رہا ہے، اگلا سن رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے علیم خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، اگر ان کا سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہے اور وہ -1 کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے بات کرنا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کل میں کھڑا ہو کے بات کروں کہ یار یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، میرا حق ہے، یہ جمہوریت میں تو یہ چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نون کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ نہ ہو، کوئی اور بنا دو، ہیں وہ ساتھ ہی، ٹیم ایک ہی ہے،
ان کے پاس کوئی ایک فرد نہیں جائے گا, ایک فرد میں کہہ رہا ہوں نہیں تو ان یہی کے تو آئیں عدم گے. اعتماد ہے نا یاور بھائی, کیونکہ انہوں نے لیڈر کے اوپر عدم اعتماد, کیونکہ لیڈر کا بنایا ہوا بندہ ہے نا عثمان نہیں, بے گزار. شک ہے, عثمان لیڈر خدا گزار تو ہے نہیں ہے عمران خان نا, پہ, لیڈر عمران خان صاحب نے ان کو چوز کیا. بینش لیڈر خدا تو نہیں ہے, لیڈر سے بھی I got the غلطیاں ہو gist. سکتی ہیں. This is the answer. لیڈر سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیڈر کو وہ اگلے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اختلاف رکھتے ہیں, مہربانی کر کے اس کو ہٹا کے اور آپ کوئی اور رکھا. I'll take it forward from this sentence. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے, سوال رکھنا چاہوں گی اس جواب سے جو کہ یاور بھائی نے دیا, لیڈر خدا نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی, اسے کہتے ہیں جمہوریت. آپ لوگوں کی پارٹی ہو, پی ایم ایل این میں ہو, جو قائد نے کہہ دیا, جو چیئرمین نے کہہ دیا, آپ کہیں, یہ نہیں کہیں گے صحیح ہے غلط ہے, آپ اسے حرف آخر مان لیں گے, نمبر 1. اور دوسری یہ چیز, کیا آپ لوگ سرپرائز کے لیے تیار ہیں جیسے سیشن ہوگا بقول یاور بخاری صاحب کے؟ یو پیپل آر گونا گیٹ اے سرپرائز. اچھا, سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں کہ روات سے جو ہمارا جلوس نکلا اس کو فیض آباد کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا, وہی کیا جا رہا ہے جو ملتان میں تھا. میں ملتان میں تھی کہ یہ اتنا قافلہ آ رہا ہے تو وہاں پہ اتنے لوگ ہیں تو بس جیتنے کو جانے دیں گے, اور وہاں پہ چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ بلاک کر دیں, تو یہ نہیں کریں. ہم پرامن ایک احتجاج لے کر نکل لیں, اور اس احتجاج کو آج ختم ہونا ہے. تو یاور بھائی کیونکہ میرے بھائی بھی ہیں, اور السلام علیکم بہن, اب یہ میرے ساتھ پروگرام کریں گے, ان کو مشکل بھی ہو جائے گی اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں کر سکیں گے. تو میں ان سے کہہ سکتی ہوں, میرے بھائی ہیں, بڑے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی وزیر اعظم سنتے ہیں, آپ کو ٹائم دیتے ہیں, تو آپ پلیز اور کسی سے تو نہیں کہنا, کیونکہ شہباز گل نے تو ابھی بیٹھ کے سب کو بھیڑیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کرائے کے ترجمان آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے, چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ راستہ کھلوا دیں. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو امت اخبار جس کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اتنے اچھے مراسم نہیں ہوتے, ان کا جھکاؤ جس طرف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ صرف سندھ سے 50,000 کا قافلہ ساتھ سفر کر رہا ہے. اس کے بعد سے یہ قافلہ بڑھ چکا ہے. ادھر ڈی چوک پر اس وقت جو میں نے معلوم کیا ہے تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں. ڈکٹیٹر کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے, اسے ریفرینڈم کرانا پڑتا ہے, اور 0.2% بھی جب اسے لوگ نہیں کرتے ریفرینڈم میں پاس, تو وہ کہتے ہیں 98 نے جو ہے ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے, اور اس کے ساتھ پھر مفاد پرست مل جاتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا تعلق کس کلاس سے ہے, میں نے کس طرح سے جدوجہد کی, کس طرح میں اوپر آئی. مجھ جیسے لوگ ہم اپنے کو چیئرمین کے ساتھ ساتھ کو چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی اور بلاول صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے جب ایک ورکر آتی ہے NA 133 میں تو چینج کر کے جاتی ہے کچھ نہ کچھ. تو پہلے تو یہ بات میں کہوں گی کہ نہیں ہے. اب دوسری بات دیکھیے, ہماری ایک جدوجہد ہے. صحیح, ہم چاہ رہے ہیں کہ اتنی ساری عوام کے ساتھ ہم نکلے ہیں, پورے پاکستان سے ایک عجیب سا روٹ بنا کے ہم نکلے ہیں, اور ورکر کا جذبہ کسی طرح پیچھے نہیں ہو رہا. تو عوام جس نے ہر جگہ کھڑے ہو کر, جو اسپاٹس بھی نہیں تھے وہاں پہ چیئرمین کو اسپیچ کرنی پڑی, تو وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. جب وہ خوش نہیں ہیں, اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 200 لوگ بھی کہیں گے کہ گو عمران تو میں چلا جاؤں گا, تو مجھے کوئی ایک بات بتا دیں. آج عمران خان نے کہا ہم نے اپنے منشور کے مطابق کام کیا ہے, کہ کوئی ایک کام منشور کے مطابق کیا ہو. چلو ساری باتیں تو چھوڑیں, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, بس مجھے اتنا بتا دیں کیا سرائے کی صوبہ دے دیا. جی یاور بخاری, ہم لوگ نکلے ہیں تو اس لیے نہیں نکلے ہیں, اور ہم اس لیے نہیں نکلے کہ یہ 1 سال جو رہ گیا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک رویہ جو ہے, یہ ایک طریقہ کار جو ہے کہ ایک نااہل کو جس کی عوام میں کوئی پوچھ نہیں ہے, جسے عوام چاہتے نہیں ہیں, اس کو عوام کی امنگوں کے بغیر آپ اس پہ اگر بٹھا دیں گے تو وہ کبھی عوام کو جواب دے نہیں ہوگا, کبھی عوام کو ڈیلیور نہیں کرے گا. نتیجہ حاضر ہے, یہ رویہ بدلنے ہوں گے. ہم اس رویے کے خلاف نکلے, اور اس رویے کی وجہ سے جس شخص نے عوام پہ مہنگائی کی, بے روزگاری کے کوڑے برسائے ہیں, ہم اس کے خلاف نکلے. اچھا شیلا, ایک مجھے آپ سوال کا جواب دے دیں, بلکہ میں یہ کہوں گی مجھے سمجھا دیں.
और आपसे बेहतर ये कौन समझा सकता है? आप तो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार है, और ये मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मतलब ये किसी किस्म का टॉन्ट या कोई तंज नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली ये मानती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर जमहूरियत की डेफिनेशन अमली तौर पर भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तो मुझे इसका जवाब दीजिए शैला कि कोई भी वज़ीर आज़म, अभी भूल जाइए कि इमरान खान है, लेट इट बी PMLN का, पीपल्स पार्टी का, अगर वो अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सकता या वादा पूरा नहीं करता या महंगाई होती है या उसकी जो गवर्नेंस है उसके मसाइल होते हैं, तो क्या उसके खिलाफ जो अपोजिशन है या कोई भी तहरीक अदम एतमाद ला करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए? क्या उसको हक नहीं होना चाहिए कि वो 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करे? जी, ये जमहूरी तरीका है और यही लिखा गया है आइन में, और इसको सबने इत्तफाक किया है कि अगर कोई नाअहल, अगर कोई अपने वादों से फिरने वाला आए और आवाम को जो सकून है वो भी छीन ले और कोई रिलीफ न दे, मुल्क को खारजी सतह पर जो है तनहा कर दे, हर तरह का नुकसान पहुंचाए, तो ये आइनी तरीक़ाकार से उसको हटाया जा सकता है। दुनिया के तमाम क़वानीन, जितने आइन हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उसमें इम्पीचमेंट के और मुख्तलिफ तरीक़े हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं करें। ठीक है, यार बुखारी साहब, वेयर इज़ द गवर्नमेंट गेटिंग द कॉन्फिडेंस फ्रॉम? आप जो ऐसे कॉन्फिडेंट बैठे हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि सरप्राइज देंगे आप ऑपोजिशन को, आपको कहाँ से किसने क्या यकीन दहानी करा दी है? क्योंकि वहाँ से तो ऑपोजिशन भी यही क्लेम कर रही है, ऑपोजिशन कह रही है आप गए, अयाज सादिक साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास तो जो नंबर गेम है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जो नंबर हमें चाहिए तो उससे भी कहीं ज़्यादा हो गई है। ऑपोजिशन की बातें अगर आप सुने ना तो इनके बयानात आते हैं, अगर ये कामयाब ना हुई तो फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे। हम कह रहे हैं ये कामयाब होंगे ही नहीं, कामयाब हम होंगे। एक बात जो मेरी बहन ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, मेरे साथ इनके साथ बहस करना भी बड़ा मुश्किल होता है, मेरी बहन है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है मेरी। देखें, इतने बुरे हालात में जब दुनिया में किसी कोई भी आपके रिश्तेदार बाहर तो होते, पता करे महंगाई का क्या हाल है, पता करे बेरोज़गारी का क्या हाल है। क्या उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ये किया है? उन मुल्कों में जहाँ पे आप जाए, अर्दोगान के खिलाफ कितना शोर मचा है, कितना पॉपुलर वज़ीर आज़म है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड की वजह से लॉजिस्टिक्स की लाइन। अभी अपोजिशन सिर्फ ये बताए कि महंगाई जो पाकिस्तान में है ये दुनिया भर में ऐसी है, हमसे ज़्यादा है। हम लोगों ने तो पेट्रोल की कीमत भी 10 रुपए कम कर, ये कहेंगे जी हम निकले, ओ चलो यार जो कहते हो मान लीजिए, लेकिन हम इनको बता रहे हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारे पास ज़्यादा हुई है, हम ये रिलीफ दे सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा टैक्स दोगे मैं वही तुम्हें वापस करूँगा रिलीफ की शक्ल में। देखिए, जो बात मेरी बहन ने की कि क्या वादा पूरा किया, हमारा सबसे बड़ा वादा ये था कि हम इंसानों की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। वो हमने पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड दिया है। पंजाब का सिर्फ 440 अरब का है, और ये गरीब को गरीब तर होने से बचाएगा, गरीब की इज्जत नफ्स बचाएगा, किसी अमीर के सामने जाके भीख नहीं मांगना पड़ेगा। अभी बेफिक्र होके सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं, बेहतरीन गैर सरकारी अस्पतालों में भी जाके बगैर किसी फिक्र के इलाज करवा सकता है। बहुत छोटा हम काम कर रहे हैं सेहत राशन कार्ड में, लेकिन ये शुरुआत है कि जहाँ पे हम उनको 30% की रियायत दे रहे हैं, जो मर्जी खरीदें, जो मर्जी उन 3-4 चीज़ों के अंदर जो मर्जी क्वालिटी खरीदें। अगर घी खरीदना है, चाहे आप एक कंपनी का नहीं, दूसरी का नहीं, सबसे बेहतरीन कंपनी का खरीदेंगे, आपको तब भी रियायत वही मिलेगी जो आम उसमें मिलेंगी। तो हुकूमत के अमूमन होता है ना कि यूटिलिटी स्टोर में सबसे 3rd क्लास क्वालिटी है, कोई भी नहीं। हमने क्वालिटी को इस तरीके से काउंटर किया है कि जो दिल करे खरीदो, उसके ऊपर ये रियायत मिलेगी। उसके अलावा जो 12,000 रुपये हम लोग वो इनको दे रहे थे लोगों को, वो हमने 14,000 कर दिए। है। ये जो इंसाफ राशन कार्ड है, इसको हम 1,500 या 2,000 करने की तरफ लेके जा रहे हैं। 1,120 अरब रुपए है, तो इसको अगर 2,000 करेंगे 240 अरब रुपए। ये कहाँ से आ रहा है? ये वहाँ से आ रहा है कि टैक्स कलेक्शन हमारी 6,000 अरब के करीब जा रही है, तो हम अपनी आवाम को क्यों ना रिलीफ दें। इन लोगों ने कर्जे लेके और इन ट्रेनें बनाई, उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं। अभी अगले साल से 30 अरब रुपए का वो हमारे ऊपर ठुकेगा हुकूमत पंजाब पे। और शैला बहन, मैंने आपकी पार्टी को डिक्टेटर कभी नहीं कहा, ना मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मैं बिनिश की बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि डेमोक्रेसी के मामले में आप लोगों की जो कुर्बानियां हैं, आप लोगों को डिक्टेटर की पार्टी कहते हैं? किस पार्टी को कहते हैं? नहीं, मैं तो नून को, मैंने शहबाज शरीफ का नाम लिया था। नून वाले इंतजार कर रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं, उनको शामिल कर लें। मुसीबत ये आपने राना मशहूद को बुलाया जो मेरा भाई है। राना मकबूल है, इट्स नॉट राना मशहूद, ही इज द सेनेटर राना मकबूल। मुझे एक ब्रेक लेना है प्लीज शैला बीबी, मैं आऊंगी ब्रेक के बाद आपके पास। एक ब्रेक लेते हैं। और PMLN का बहुत जिक्र हो रहा है, PTI PMLN को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। राना मकबूल साहब की शिद्दत से आमद का इंतजार होता है। सेनेटर साहब, आपसे मैं ब्रेक से वापस आकर सवाल भी रखूंगी और आपको इस डिस्कशन का हिस्सा भी बनाऊंगी। विल बी बैक शॉर्टली।
ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में है जी यावर बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुझे ज्वाइन करे वेरी ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब PMLN से। राना साहब, फर्स्ट सेगमेंट में आपकी बिट ज़रा रह गई। आपकी बिट में इस बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी कि यावर बुखारी साहब ने कहा कि वो आप लोग को सरप्राइज़ करेंगे। वो तो जब सरप्राइज़ करेंगे सो सरप्राइज़ करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इतना बुरा आप लोगों को मारूंगा कि आप लोग 2028 तक नहीं उठ पाएंगे। मतलब 2023 भी नहीं, 2028 तक की बात कर रहे हैं। आपने प्लानिंग कर ली है? देखो जी, हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है, तकब्बर अज़ाज़िल्ला खार कर बेज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। जो तकब्बर है ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। बुखारी साहब तो बड़े खुद दरवेश आदमी हैं, शैला भी बहुत ज़्यादा नेक ख़ातून हैं। अल्लाह से डर के बात करनी चाहिए। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह को मंजूर ना हो। इसलिए ये बात तो होगी तय कि मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर सकते हैं। ये भड़क फड़क जो है ये स्टेट्समैन का खासा नहीं है। ये वो लोग करते हैं या तो बिगडर हैं या वो पॉलिटिक्स में क्वैक्स हैं। ये कोई मैच्योरिंग नहीं है। आपने मेलसी की तकरीर सुनी ना, लोग शर्मिंदा भी हुए बातें सुन के। इससे काम नहीं चलता है। काम चलता है कंट्रीब्यूशन करने से। ये सारा जो कमोशन बरपा हुआ है, क्यों बरपा हुआ है? बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से, माफिया जिनको कहते हैं उनके खिलाफ एक्शन ना लेने की वजह से। और जो आग लगी है कि जब $4 पे लेना था पर यूनिट LNG, वो आज जो 30.5 कितने पे पता नहीं, उससे भी ऊपर पे ले रहे हैं। सारे ज़माने ने चीखो पुकार की कि आप ले लें, नहीं लिया। आप अब अंदाज़ा कर लें ना कि अगर आप कोविड की जो आई हैं ग्रांट्स, उनमें में से 40-40 अरब इधर उधर हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने ये जो आप पेट्रोल की कीमत की रोज़ बात करते हैं, चूँकि मैं डील करता हूँ उस कमेटी को, तो मैंने चेयरमैन आगरा से पूछा कि जी कल जो आपने 12 रुपये पर लीटर बढ़ाया है, आपने 12 रुपये पर लीटर पे किया है? ये तो आपने उस स्टॉक से दिया है जिसके ऊपर आपने पैसे पे नहीं किए। तो आपने किस हिसाब से अवाम नास पे ये जगह लगा दिया और तबाही मचा दी है? आपने ये क्वांटम देखा है इसका कि इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे, लोगों की रोजी रोटी पे कितना होगा? तो मेरा मतलब ये है कि जब इतनी अनथिंकिंग किस्म का एटीट्यूड हो विदाउट प्लानिंग, और फिर आप देख रहे हैं कि कितने माफिया की बात हुई है। गंदम का माफिया है, शुगर का माफिया है, ये ऑयल का माफिया है, ये दवाइयों का माफिया है। मुझे बताएं, ये कहते हैं हम तो पैसे रिकवर करेंगे। किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? दिस इज ए गवर्नेंस ऑफ इन एक्शन। तो ये इन एक्शन की बिना पर सारे जो हैं ये कमोशन है, सारी रिजेंटमेंट है और सारा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। आपकी पार्टी के अगेंस्ट तो खूब एक्शन हुआ। आप तो ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इनएक्शन। दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन अगेंस्ट यू पीपल, नंबर 1। नंबर 2 सर, इतना इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। 3.5 साल हो गए, 1-1.5 साल बचा है, उसमें से अभी 6 महीने के बाद तो हर कोई इलेक्शन कैंपेन में ही चला जाएगा, नॉर्मल रूटीन में। अगर ये तहरीके अदम एतमाद ना आती तो सर आप 1-1.5 साल और बर्दाश्त कर लेते। आप लोग तो वोट को इज्जत देने वालों में से हैं। आपका तो नारा ये है। कैसा लगेगा जब आप इलेक्शंस के लिए जाएंगे और आगे अपने लोगों को बताएंगे कि भाई आपने इस तरीके से एक वजीर आजम को बाहर निकालने की कोशिश की और अगर वो नाकाम हो गई तो एक नाकाम कोशिश की? नहीं, ये एक तो अब अलग फल से नाकाम नहीं होगी। दूसरी फेलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं जो इनकैलकुलेबल हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इनकी अचीवमेंट यही है कि इन्होंने मुखालफों को पीसा है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिए हैं, उनकी बच्चियों को बंद किया है, उनसे बिस्तर छीने हैं, उनसे चारपाइयाँ छीनी हैं, उनकी दवाइयाँ छीनी हैं। ये इनका कमाल है। अभी उनकी हसरत पूरी नहीं हुई। आज वो कह रहे थे कि चाइना में 500 जो लोग थे वो सजा कर दिए गए और पता नहीं उनका दिल तो लोगों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करने के लिए। इतना ज़्यादा पैशनेट लीडरशिप जो है वो मुल्क के लिए इंजूरियस होती है। यू नीड टू हैव डिस्पैशनेट कूल हेडेड लीडरशिप सो दैट दे टेक करेक्ट डिसीशंस। ये विजनरी होने की ज़रूरत है। ये डांग पकड़ के मौला जट बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बुखारी साहब ये बात राणा साहब आपकी बिल्कुल समझाएं अगर मौका मिले तो।
जी जी, मैं ज़रा यावर भाई से इसके ऊपर कमेंट करूँ। यावर भाई, ये देख लें, राना मकबूल साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया। बाकी आज इमरान खान साहब ने ये कहा, तो फिर पाकिस्तान ठीक कैसे होगा, तरक्की कैसे करेगा? आप लोगों ने तो अपने किसी एक वजीर को भी ऐसा कुछ नहीं किया, मारा नहीं है। देखें, बात दुरुस्त है। देखें, हर चीज़ का एक वक्त आता है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप चाहें नहीं भी तो करनी पड़ती हैं, और बेहतर होता है कि आपके पास जब वक्त हो आप तब कर लें। बहुत सारी चीज़ें होने की हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। आपका जो फॉरेन आपका जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल, इस साल उससे भी जो बताया जा रहा है अराउंड टू 20% इंक्रीज, जो विच इज़ द हाईएस्ट इंक्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो 35-36 अरब को हिट कर रही हैं, एक्सपेक्टेड है। देखिए ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और फिर बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी पिछली दफ़ा पंजाब की कैबिनेट में जो हमारी मीटिंग हुई है, हमारे पास चाइनीज़ इंटरेस्टेड है कि चोलिस्तान का डेजर्ट हमें जेवीज़ का, हम लोगों ने शर्त की कि जेवी होना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी बीच में हो, कि चोलिस्तान के डेजर्ट को हम ग्रीन करें और वहाँ पे हम लोग गंदम उगाएं, कपास उगाएं, वो चीज़ें उगाएं जो कम पानी लेती हैं। ये क्यों लोग इतने इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लोग क्यों आ रहे हैं बीबी, अगर इतने हालात ख़राब है जैसे ये लोग कह रहे हैं? चाइनीज कंपनीज क्यों अपने आप को यहाँ पे ला रही है? अभी मेरा क्लास, आपके मुताबिक तो हालात ठीक अमेरिका में मेरा क्लास वाला बैठा, अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये क्यों आ रही है? सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं बताता हूँ वो क्यों आ रहे हैं, बिलावल के मैं साथ बताता क्राउड हूँ इतना चार्ज है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मैं आपको बताता हूँ। मेरे क्लास फेलो ने आज मुझे फ़ोन किया कि अमेरिकन कंपनी इंटरेस्टेड है यहाँ पे कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की उनको इस टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट वन ऑफ द बेस्ट नज़र आ रही है, तो वो आ रहे हैं। अभी 300-400 मिलियन डॉलर अगर खर्च करेंगे तो वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि उनको एक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। जो ये लोग आ रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ख़ास तौर पंजाब में जो हमारा जितना बैलेंस बजट था और जो हमारे मंसूबे तहखानों से ऊपर आ गए, उनके सरिये और उनके पिलर्स और उनके छत पड़ने शुरू हो गए, इनको खौफ ये है कि ये सेहत इंसाफ कार्ड ने पूरा प्रॉपर्ली किक इन कर लिया, ये इंसाफ राशन कार्ड ने प्रॉपर्ली किक इन कर लिया, ये हर ज़िले के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन, स्कूल्स की और कॉलेजेस की अपग्रेडेशन लोगों को नज़र आना, एहसास होना शुरू हो गया। और जब ये नज़र आना शुरू हो गया कि गरीब अवाम को हमने ये उम्रा से आज़ाद कर दिया, उनकी इज़्ज़त नफ्स बचाई सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए, और फिर बाकी जो हम लोग एहसास के प्रोग्राम्स हम लोग ने लॉन्च किए, जैसे ग्रेजुएट्स को हम 30,000 रुपये महीना देने पे प्राइम मिनिस्टर ने पता नहीं 50 लाख को कितने को वो देने के लिए कहा है। फिर उसके अलावा जो हम यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको खौफ ये आ रहा है कि ये अगला इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। अब ये जो बात करते हैं ना कि लोग निकल आए हैं क्योंकि बेरोज़गारी है, क्योंकि महंगाई है, कॉल करें लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी आप अरब कंट्रीज़ में कहीं भी किसी को कॉल करें, पता करें महंगाई का और बेरोज़गारी का क्या हाल है, देन आप उसको पाकिस्तान के साथ मुकाबला करें। ऑपोजिशन आधा सच और आधा झूठ, हुकूमत की गुड गवर्नेंस और गुड परफॉर्मेंस से घबरा गई है और इसलिए वो ये सब मैं गुड गवर्नेंस की बात इसलिए नहीं करूं कि अभी तक नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। देखिए गवर्नेंस की अभी तक कमी है, गवर्नेंस की अगर कमी ना होती तो यहाँ पे करप्शन ना होने के बराबर होती। गुड गवर्नेंस हम लोग, मैं क्लेम नहीं करता, मैं कहता हूँ गवर्नेंस बेहतर हुई है, बीच में फिर लैप्स करती है, और ये डिपेंड करता है कि कौन कितना उसके ऊपर तवज्जो दे रहा है ना। तो उसके अंदर बेहतरी भी है, बुराई भी है। उसके अंदर कई जगह आप बड़े मिनिस्टर्स का आप मुझे करप्शन स्कैंडल्स दिखा दें, कितने हैं, आप फिर पिछड़ों का मुकाबला कर लें। आप ये देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर था, उनके खिलाफ आप करप्शन स्कैंडल्स बता दें, उनका सच उनका झूठ बता दें असेंबली में और बाहर ये करता। राणा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि बेटियों को जेल में डाला गया। देखें हम लोग बेटी के कार्ड को ना खेलें, हम बेटी के कार्ड को ना खेलें। अगर बेटी के कार्ड को खेलने वाली अगर बात करेंगे तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो जुल्म किया गया ज़िया उल हक के ज़माने में और वो IGI के ज़माने में जिस तरीके से किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे मरियम साहिबा को जेल में भेजा गया क्योंकि उन्हें झूठ बोला और उन्हें चीजें छुपाई, झूठ बोला कौम के साथ कि मेरा बरतानिया में क्या, मेरा पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, और जो झूठ बोले कि मैं तो अपने बाप के वो रहमो करम पे रहती हूँ, ये बातें जो किए तो ये तो उन वजह से गए हैं, ये तो कोर्ट ने भेजा है, PTI ने नहीं भेजा। जी ये शहबाज शरीफ कह रही हूँ, ये शैला रज़ा साहिबा से मैं इसका बिल्कुल जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। शैला साहिबा, आप लोग घबरा गए हैं ना इनकी परफॉर्मेंस से कि ये हुकूमत तो लंबी रेस का घोड़ा निकली है? जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यावर बुखारी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना मकबूल साहब हैं PMLN से। जी शैला साहिबा, इट्स योर टेक। आप लोग घबरा गए हैं?
बड़ा अफसोस हुआ आप लोग घबरा गए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से। देखिए मेरे भाई हैं यावर बुखारी साहब, जब वो सेहत कार्ड की बात करते हैं तो इंसान को हंसी आने लगती है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इंशाल्लाह प्राइवेट जो हैं वो हॉस्पिटल्स बनेंगे और वहाँ से ये जो है लोग इलाज कराएंगे। जो एक हर्निया का ऑपरेशन जिस पे नहीं हो सकता गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो कार्ड है। एक रात जो है ना अगर कोई ICU में गुजार ले तो 1 लाख से ज़्यादा बन जाता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 550 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, पता नहीं कितने दिल के जो हैं वो ऑपरेशंस हो चुके हैं, गामा नाइफ लगा हुआ है। ये अपने एक ऐसे कार्ड को रो रहे हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है अब हर उस चीज़ पे पैसे लग रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ के ज़माने में गवर्नमेंट के यहाँ पैसे नहीं लिए जाते थे। फिर ये बात कर रहे हैं कि हम इधर से पैसे की मदद कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि डॉलर जो है इस वक्त वो उसकी उड़ान तो रुक ही नहीं रही है। तो इस महंगाई में जब आप 1000 रुपये भी सपोर्ट में देते हैं तो वो कहाँ जाता है वो। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आपने 10 रुपये कम कर दिए पेट्रोल की कीमत, जब $90 पर बैरल था आपने 12 रुपये 65 पैसे बढ़ाई थी, फिर 10 रुपये कम किए जब वो $100 हो गया। तो आप मुझे बताएं क्या ट्रांसपोर्टर्स ने कमी की किसी चीज़ में? क्या कोई मैकेनिज्म आपने डाला? अभी कल का अखबार उठा के देखें, 19 अशिया जिसमें मटन भी था, चिकन भी था, दूध भी था, अंडे भी थे, डबल रोटी भी थी, दालें भी थी, इनकी कीमतें बढ़ी हैं और 0.06% जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ी है। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग पता नहीं, हम लोग को इतना पूरी एक PTI का मसला है कि वो दूसरों को सामने वाले को बिल्कुल ज़ीरो समझती है। करंट अकाउंट खसारा जिस पे मैंने कल अपनी फेसबुक पे भी प्रोग्राम किया था कि वो देखें कि वो आपकी आमदनी कितनी और खर्च आपने कितना कर दिया, 16 पता नहीं कितने फीसद पे वो चला गया है। फिर ये जो अभी बात की थी राना साहब ने, आपने फ्यूल चार्जेस की मद में जो आड़ ले के आपने अवाम पे बिजली का बम गिराया है, ये सब कैसे होगा? और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पहले 7 माह हैं 21 से लेके 22 तक के, इसमें जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हुई हैं, इंपोर्ट के बिल बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। मेरे पास पूरा फिगर था क्योंकि इससे पहले ऊपर प्रोग्राम था। इसके अलावा आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ कि जनाब ये जो कर्जा है ना, बैरूनी कर्जा, ये है 85.5, जिसमें से 35.1 US डॉलर जो है ना वो आपने लिए हैं बैरूनी कर्जा जो है। इसी तरह 139 ट्रिलियन जो है ना रुपीस वो अंदरूनी कर्जा आपने लिया है, जो 5 साल के PMLN और 5 साल के जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उससे 80% ज्यादा है। तो मैं कहाँ से कहूँ कि कहाँ तरक्की हो रही है? किसी एक आदमी को कॉल पे लें और कहें तुम्हारे घर खुशहाली है, तो मईशत का रिफ्लेक्ट अवाम के ऊपर होता है। अवाम में से किसी एक को रैंडमली फोन कर ले, वो आपको कहेंगे अल्लाह के लिए इससे बचाओ हमें। चलिए जी, आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत माजरत के साथ, लेकिन क्या करें वक्त इतना कम है। क्या हो गया? हुकूमत का नहीं, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। मीनवाइल ऑब्वियसली बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। कल जैसे आपको ये छोड़ करके नोट पर गई थी शो, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। सो मजीद आने वाले दिन भी बहुत अहम होने वाले हैं, इस हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। आज के लिए इतना ही। आज के लिए मेहमानों का भी शुक्रिया। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।